Hello friends, I Devang Prajapati from Upanishad Science Academy Limkheda, Standard 11 Chemistry Structure of an Atom, lecture number 6, which will be from the page number 41 to 43. So let's begin it. Now before starting, in the last session what we have done, we will see that in the last session we have done one thing, that is the particle nature of electromagnetic radiation, that is EMR, or you can also call it as a Planck's theory. Okay, now in today what we are going to do, there are 3 points. One, that is the photoelectric effect. Second, that is dual behavior of electromagnetic radiation, and the sums of it. So let's begin it. The first one, that is photoelectric effect. So what is photoelectric effect, we'll see, and who has discovered about it. Okay, in 1887 H. Hertz performed a very interesting experiment in which electrons were ejected when certain metals, example potassium, cesium, such metals if you will take, and then were exposed to the beam of light. This is the beam of light. When such metals are exposed to the beam of light, at that times when they strike, immediately the negatively charged electrons are ejected. Okay, so this is what the complete setup of Hertz experiment, and this phenomena is called the photoelectric effect. इसी को हम क्या बोलते हैं, photoelectric effect. So what is it about? When the metals like potassium, cesium, rubidium, such metals are exposed to the beam of light, at that time there is an electron which are ejected, and this process is known as a photoelectric effect. So the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes on the surface, that is, there is no time lag between the striking of a beam and the ejection of electrons from the metal surface. Means there will not be the time difference between the striking as well as the ejection. Whenever the light rays they travel and they strikes on the surface of metal, immediately there is an ejection of electrons which are taking place from the surface of matter without time lag. Okay, then
The number of electrons ejected is proportional to the intensity or brightness of light. Means whatever the number of electrons which are ejected, that is directly proportional to the intensity of, or you can say the brightness of the light. For each metal there is a characteristic of minimum frequency which is called as an N0. It is written like this, N0. Also which is known as a threshold frequency. For each metal there is a characteristics minimum frequency. सभी मेटल के लिए कुछ स्पेसिफिक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है. ओके, बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व. इसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होती है. ओके, एट द फ्रीक्वेंसी विच इज n greater than n0, when there is a n greater than n0. Okay, the ejected electrons come out with a certain kinetic energy. तभी कुछ एनर्जी से, कुछ काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर आने वाले फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल. द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड. Means the frequency if it is increasing, then the kinetic energy of this electron is also increasing. So you can prepare the formula over here. That यहाँ पे एक formula बना सकते हो. Kinetic energy is directly proportional to the frequency. तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी साथ में बढ़ने वाली है. ओके, फिर हाउ द अरेंजमेंट्स. ओके, विल सी दैट अरेंजमेंट कैसी है. आप देख सकते हो कि जो डायग्राम है उसका एक्सप्लेनेशन पूरा कैसे है. कि सबसे पहले बैटरी का सप्लाई है यहाँ पे, देन द एमीटर, हाउ मच एम्पियर ऑफ द करंट यू आर पासिंग, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द एमीटर. फिर यहाँ पे डिटेक्टर रखा हुआ है. ठीक है, फिर मेटल की सरफेस पे आप देख रहे हो ये लाइट का रे आ रहा है यहाँ से. सपोज कि सनलाइट है वो आ रहा है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल. कौन से 3 मेटल की हमने बात की, कौन से मेटल इस्तेमाल किए. हर्ट्ज ही हैज यूज्ड पोटेशियम, रुबिडियम एज वेल एज सीजियम. ऐसे कुछ मेटल का इस्तेमाल करके ऐसी प्लेट लगाई हुई है वहाँ पे. ठीक है, वैक्यूम चैम्बर के अंदर. तो जैसे लाइट रे उसको स्ट्राइक होते हैं, when they bombard, when they strike, when they fall, okay, on the surface of metal, immediately there is a ejection of electrons. और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डिटेक्टर से डिटेक्ट होने वाले. ठीक है, तो ये पूरा सेटअप है. ओके, किसका सेटअप है. हर्ट्ज, H हर्ट्ज. ओके, अभी आगे जाए उसके पहले बोल देता हूँ जो बच्चे चैनल पे नए हैं, ठीक है, वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको नया वीडियो जो मिले, ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए सबसे पहले. तो चलिए अब आगे जाते हैं. ऑल द अबो रिजल्ट्स could not be explained on the basis of the laws of classical physics. यानी पुराना जो फिजिक्स था, ठीक है, उसके हिसाब से ये सब समझा नहीं पाए. अकॉर्डिंग टू लेटर द एनर्जी कंटेन ऑफ द बीम ऑफ लाइट, वो किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड्स अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट. ये बात हो चुकी है हमारी. ठीक है, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, उतना एनर्जी जो है वो भी ज़्यादा होने वाला है. ठीक है, तो दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर प्रोपोर्शनल है. फिर in other words the number of electrons ejected and the kinetic energy associated with them should depend on the brightness of light. देखो सब एक दूसरे के ऊपर कोरिलेट है. ब्राइटनेस ऑफ लाइट ज़्यादा हुई समझ लो, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होने वाली है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं उसके नंबर्स भी बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. देन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड does not depend upon the brightness of light, the kinetic energy of ejected electrons does not. It has been means क्या ऑब्जर्व हुआ, number of electron ejected does not depend upon the brightness of light, कि brightness of light पे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है.
the kinetic energy of the ejected electrons does not. Okay, so क्या बात यहाँ पे कर रहे हैं, ऑब्जर्व किया गया दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, लाइट की ब्राइटनेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है. एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट, कि उसमें से जो काइनेटिक एनर्जी लिबरेट हो रही है, ठीक है, वो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, उसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं हम. रेड लाइट को उठाओ भाई, तो रेड लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 4.3 to 4.6 into 10⁻14 hertz of any brightness intensity may shine on a piece of potassium metal for the hours but no photoelectrons are ejected. यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि रेड कलर की जो इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और ब्राइटनेस इंटेंसिटी में शाइन ऑन अ पीस ऑफ पोटेशियम, कौन से मेटल के पीस पे, पोटेशियम, फॉर आवर्स, ठीक है, बट नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड. वो इजेक्ट नहीं हुए, ठीक है. बट एज सुन एज इवन अ वेरी वीक येलो लाइट, सपोज येलो लाइट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज 5.1 to 5.2 into 10⁻14 hertz. ये वीक फ्रीक्वेंसी है, ओके, वेरी वीक. साइंस ऑन द पोटेशियम मेटल, ऐसे ही पोटेशियम मेटल पे साइन करवाया, टक्करवाया, ठीक है. द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, मीन्स उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुई, ओके. रेड में नहीं हुआ, येलो में हो गया, ओके. द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर पोटेशियम मेटल, यानी इससे हमें पता क्या चला कि जो पोटेशियम मेटल है हमारा, उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम V0 बोलते हैं, ओके, वो कितना है हमें पता चला 5 into 10⁻14 hertz. याद रखना है कितना है, 5 into 10⁻14 hertz थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर कौन से मेटल के लिए, और पोटेशियम, ओके. तो ये हमें एक चीज याद रखनी है, ओके. देन आइंस्टाइन इन 1905 was able to explain the photoelectric effect using the Planck's quantum theory of electromagnetic radiation as a starting point. जो आइंस्टाइन था, वन 1905 में was able to explain the photoelectric effect. ये इजीली ये समझा पाया, ओके. कैसे, बाय यूजिंग द प्लैंक्स क्वांटम थियरी. भाई
ये प्लैंक्स क्वांटम थियरी क्या है, तो वो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, यही है, ठीक है। लास्ट टाइम का जो वीडियो आपने देखा होगा तो वो प्लैंक्स का क्वांटम थियरी था, ओके। फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। फिर हम बात करें दैट शाइनिंग अ बीम of light on the metal surface can therefore be viewed as a shooting a beam of particles, the photons. अभी ये photons क्या है भाई, तो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, okay, they are known as photons, okay. When a photon of sufficient energy strikes on the electron in the atom of metal, यानी मेटल की सरफेस पे फोटोन जब स्ट्राइक होते हैं, it transfers its energy instantaneously to the electron during the collision. सपोज कि मेटल का सरफेस है, इस पे फोटोन स्ट्राइक हो रहे हैं, इमीडिएटली उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, अलग अलग मटेरियल जो है मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन दे हैव गिवन, ओके। इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है। फिर जो हम बात कर रहे हैं, शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट ऑन द टू अ मेटल सरफेस देयरफॉर बी व्यूड एज शूटिंग अ बीम ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज एन फोटॉन्स. When a photon of sufficient energy strike to the electron of the atom of the metal की सरफेस पे फोटोन स्ट्राइक होते हैं, इमीडिएटली वो जो फोटोन है अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसफर करेंगे किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, कोलिजन के दौरान, और तुरंत इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट, चलो भाई हम जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, टाइम बिगाड़े बिना. Greater the energy possessed by the photon, greater will be the transfer of energy of the electron and the greater will be the kinetic energy of the electron. इसके बारे में भी हमारी बात हो गई, जितनी एनर्जी फोटोन की ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ही इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, वो भी ज़्यादा होने वाला है, और निकलने का, बाहर निकलने का, और वो भी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी. तो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये पूरा याद रखना है, बहुत मस्त है, ठीक है. यहाँ से पूरा देखो मैं टिक कर रहा हूँ, ओके. In other words, the kinetic energy of the ejected electron is proportional to the frequency of the electromagnetic radiation. तो इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवा दिया है. क्या फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी देखो यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, ओके. काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ये उसका फॉर्मूला है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. बहुत सिंपल फंडा है, ओके. सिंस द स्ट्राइकिंग फोटोन has energy equal to h nu which is called frequency. h is Planck constant. last time हमारी बात हो गई है, okay. and also called as a work function, okay. ये h nu को h nu energy equal to the h nu and the minimum energy, क्या बात हो रही है देखो फिर से समझा देता हूँ. Since the striking of photon has energy equal to the h nu and to the minimum energy